Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I truly thank God for what I heard today. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो वचन मैंने आज सुना है उसके लिए। Abu brother touched one of the part in regards to where he was saying about bonus or increment. और भाई अबू ने बताया कि बोनस इंक्रीमेंट के बारे में। And this is that time of the year in our office where our annual bonus and increments gets decided. और ये एक समय वैसा चल रहा है जहाँ पे एनुअल बोनस इंक्रीमेंट प्रमोशन ये सारी चीज़ें डिसाइड होती So है it was कंपनी almost में। from last year I received somewhere around 25% of my bonus. और 25% बोनस मैंने जो है पिछले तुलना में मैंने प्राप्त किया था। And this year I received almost like just 10%. और इस साल मैंने उसका 10% ही प्राप्त किया। So the difference of that 15% was huge. और जो वो उसका जो अंतर जो था वो बड़ा था उसका। And it was that I didn't question about it, but more than me, my wife got furious about it. और मैंने उसको प्रश्न नहीं किया लेकिन मेरी पत्नी उससे बहुत वो भयभीत हो गए उसको देखकर। Because somewhere down the line we had made plans and we had already assumed amount and then we had made plans of it. और उस रकम को लेकर हमने कुछ पहले ही कुछ योजना को बनाई थी। And everything got shattered and we were like, oh, what to do now? और वो सारी चीज़ें जैसे कि वॉशी शैटर्ड हो गया और अब क्या करें। But then somewhere down the line, the passage always reminds me the worker in the vineyard. और यहाँ पर जब परमेश्वर जो है वहाँ पर वो जो कर्मचारी उस बारी के अंदर काम करता है वहाँ पर याद दिलाता है। It's in Matthew 20 verse 14. और मत्ती उसका 20:14। The very first statement, take what is yours and go your way. और वहाँ लिखा है 14 मत्ती 20:14 जो तेरा है उठा ले और चला जा। I don't know how come every time whenever there is some problem with regards to financials, the Lord always tells me this. और जब भी मेरे आर्थिक समस्या है कभी भी ऐसे ऑफिस के अंदर जब बोनस या किसी संबंध में होता है इसी वचन से प्रभु से मुझे प्रोत्साहित करता है। And I tell you, it is very difficult when you have to pray in such situations. और बहुत कठिन कई बार होता है इन परिस्थिति के अंदर प्रार्थना करना मेरे लिए। Because like Abu brother said, it is 100% then everywhere. I mean, whenever everything is going correct, you are happy to pray. और जब भाई ने जैसे बताया कि जब सारी चीजें बहुत ही अच्छी चल रही होती है प्रार्थना करना आसान होता है। Oh, you receive such a nice bonus, everything is fine, let's pray. और जब अच्छा एक बोनस मिलता है तो हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा है चलो हम प्रार्थना करते हैं। But then in situations like such, it is very difficult because you're not in that condition that, how can I pray in this difficult situation? और जब ऐसी परिस्थिति के अंदर हम जाते हैं जहाँ कुछ नुकसान होता है तब कैसे हम प्रार्थना करें उसके But the लिए। moment you start praying, everything calms down. और जब हम प्रार्थना करना आरंभ करते सारी चीजें वहाँ सही हो जाती है। Apparently, me and my wife, we also prayed about it, and we were eventually calmed down. और जब हम मेरे और पत्नी ने इसलिए इस संदर्भ में प्रार्थना किया हम भी पूरी तरह से उसमें सही हो गए उन मामलों के And अंदर। we rescheduled, we replanned everything, and everything is sorted now. और हमने वापस उसको योजना कल्पना बनाए और उन सारी चीज़ों को हमने योजना बनाकर सारी चीज़ें ठीक हो गई। So just for that matter of seconds, I feel that it is not justified that we should be angry with Lord that why it happened to me. और हमें ये उस कुछ क्षणों के लिए कि हम प्रभु के साथ नहीं झगड़ा कर सकते कि क्यों प्रभु ऐसा करता है। And the example that Abu uncle gave of Job, I think he is the person that I really admire from Old Testament. और पुराने नियम में जैसे हमने उस अय्यूब के उदाहरण के बारे में सुना मैं बहुत ही इस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूँ। I have given example, quoted words like whenever I share here, I always take Job's name. Like I really get encouraged by this person. और उस व्यक्ति का जब भी नाम लिया जाता है उसके वचन के भाग के अंदर मैं बहुत ही प्रोत्साहित होता I हूँ। think what Abu uncle shared today also, like if I have that feeling that oh I didn't got what I deserve, यदि मेरे अंदर एक ऐसी भावना आती है कि जो मैं डिजर्व करता हूँ मैं योग्यता मेरी जो है वो यदि मुझे नहीं मिला है तो I think somewhere down the line I am just disrespecting what Job said, like the Lord gave and the Lord has taken away. और जो अय्यूब ने किया उसका मैं अनादर करता हूँ जो कहता है परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया। It shouldn't be that what do you say, a pride in me that I deserved it, I didn't got it. और यहाँ पर ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे मैं डिजर्व करता था लेकिन मुझे नहीं मिला है If a believer, if me being a believer, if I think everything is given by God, और यदि विश्वासी होने के नाते इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ कि जो सब कुछ जो मेरे पास है वो प्रभु ने दिया है। I think I do not have any authority over my finances, I do not have any authority over my breath even. और यहाँ तक मेरे जो आर्थिक बातें हैं मेरे फाइनेंसिस है यहाँ तक कि मेरी सांस जो उस पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। And at the same time it doesn't become
illegal that I should be taking authority or taking ownership over finances. और ये अच्छी बात नहीं होगी मेरे लिए कि जो मेरे सारी आर्थिक बातें उस बातों के ऊपर मैं और उन सारी बातों के अधिकार रखने लग जाऊं। The very last word that I would like to share is from Psalms 144. और अंतिम वचन में बांटना चाहूंगा भजन संहिता 145 144 verse 17. 144 Yeah. 17 वचन। It says, "The Lord is righteous in all his ways, gracious in all his works." 17 राइट। Yeah. यहोवा 145 उसका वचन 17, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है। I think this word should really get engraved in my heart that whatever he does is right and it is for my good only. और जो भी परमेश्वर करता है वो मेरे भलाई के लिए करता है, इस बात को हम याद रखें। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I was greatly encouraged by today's message. और मैं आज के वचन से बहुत प्रोत्साहित हुई। Our son was going through a lot of temptation. और हमारा जो बेटा है वो बहुत सारी परीक्षाओं से प्रलोभन से गुजर रहा है। And many times he fell. और बहुत बार वो गिर जाता है। Though my husband and I were praying for it, और हालांकि मैं और मेरे पति जो है उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, we saw him getting distressed and angry. और हमने देखा कि वो परेशान हो रहा है और गुस्सा भी हो रहा है। So one day burdened, last week I was praying to the Lord. और पिछले हफ्ते उस बोझ के साथ मैं प्रार्थना कर रही थी। I took 1 Corinthians 10:13 and said, Lord, you said that temptations will not go beyond. और मैंने पहला कुरिन्थियों 10:3 लिया कि प्रभु जो परीक्षा है वो उसके सहने से बाहर नहीं जाएगी। You also said there is a way out. और आपने कहा है कि एक मार्ग भी निकलेगा। Show me what is the way. और प्रभु मुझे दिखाइए कि वो रास्ता क्या है। And he showed me in 2 Corinthians chapter 2 verse 11. और प्रभु ने मुझे दिखाया दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय Chapter 2 verse 11. दूसरा अध्याय चैप्टर 2 वर्स 11। 11. हाँ, उसका 11वां वचन। In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. कि शैतान की हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। And in my study Bible, that at the side of it, 3 references were shown. और मेरी स्टडी बाइबल में उसके लिए 3 रेफरेंस दिए गए हैं। One was Luke 22:31. और पहला जो है वो लूका 22 Luke 22:31. उसका 31 वचन। Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. शामोन शामोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, 32. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। So I told my son, listen, your father, heavenly father, has permitted Satan to sift you. और मैंने मेरे बेटे से कहा कि हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं उसने ये अनुमति दी है कि तुम्हें फटका जाए, But strengthen yourself with this. Jesus Christ is interceding for you. पर अपने आप को इससे ढांढस दो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। He is praying that you will not fail in your faith. और वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम अपने विश्वास में ना गिरो। But my son said that everyone around is tempting him a lot and it is unable for him to hold on. और उसने बताया कि उसके आसपास जो है हर कोई उसे प्रलोभित कर रहा है और ये बहुत मुश्किल है उसके लिए कि वो ना गिरे। Then I showed him 2 Corinthians chapter 4 verse 4. फिर मैंने उसे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4था वचन दिखाया। The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। I said, your friends are blind. मैंने उससे कहा कि तेरे दोस्त जो है वो अंधे हैं, They can't see. वो नहीं देख सकते। Don't get angry at them. और उन पर तुम गुस्सा मत हो, Be merciful. पर उन पर दया करो, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। And one more verse the Lord showed. और एक और वचन प्रभु ने मुझे दिखाया, 1 Peter पहला पत्रस chapter 5 5वां अध्याय verse 8, और उसका 8वां 8 वचन, and 9. 8 और 9। Be self-controlled and alert.
सचेत रहो और जागते रहो, Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। I told him, pray every day that the Lord fills you with the Holy Spirit, और मैंने उससे कहा कि तुम प्रतिदिन प्रार्थना करो कि प्रभु प्रतिदिन तुमको पवित्र आत्मा से भरे, so that you will have self control, which is the fruit of the Spirit. ताकि तुम्हारे अंदर संयम हो जो पवित्र आत्मा का फल है। This devil can only roar, he cannot touch you. और जो शैतान है वो सिर्फ गरज सकता है, वो तुम्हें छू नहीं सकता। Last Wednesday, Vincent brother said, the power of death has been taken away from him. और लास्ट वेडनेसडे हमने सुना भाई विल्सन ने कहा कि जो मृत्यु की जो सामर्थ्य है वो ले ली गई है, So therefore he is roaring, इसलिए जो है वो सिर्फ गरजता है and he is saying who all can fall under that sound. और वो देखता है कि मेरी इस आवाज को सुनकर कौन गिर सकता है। But God is telling you, resist him, stand firm in your faith. और प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसको डांटो और अपने विश्वास में तुम स्थिर रहो। And then I told him, you know why you should do this? और मैंने उससे कहा कि क्यों तुम्हें ऐसा करना चाहिए, Because you are brothers. It's written in verse 9, knowing that your brothers throughout the world undergoing the same kind of suffering. ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारे भाई जो है जो इस संसार में वो भी इसी तरह के दुख से होकर जा रहे हैं। That's the same thing Jesus told Simon also, और यही बात जो है यीशु मसीह ने पत्रस से कही, that once you have come out, strengthen your brothers. और जब तुम इस परीक्षा से बाहर आ जाओ तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Therefore, God has confidence that you will fight and you will be an overcomer. और प्रभु को तुम में ये कॉन्फिडेंस है कि तुम इससे लड़ पाओगे और इससे जयवंत भी हो पाओगे। And He expects you to encourage your brothers and strengthen them. और वो ये तुमसे अपेक्षा करते हैं कि तुम अपने भाई बहनों को भी प्रोत्साहित करो। This is the work He is doing in you. और ये जो काम है प्रभु तुम में कर रहा है, And just as we heard, He will fulfill. और जैसे हमने सुना कि वो उसे पूरा भी करेगा। Praise God. प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद। जो वचन आज मैंने सुना है बड़ा ही बलवंत और प्रोत्साहित करने वाला वो वचन मेरे लिए था। मैं सोच रहा था कि एक कैटरपिलर जब होता है, एक तितली जो होती है, स्ट्रगल करती है उस कुकुन से बाहर आने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करती है, बहुत दर्द से होकर गुजरती है वो एक तितली जो होती है उस कुकुन से बाहर निकलने के लिए, स्ट्रगल करती है वो बटरफ्लाई बनने के लिए। और हम वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस दर्द से तुझको छुटकारा देना चाहता हूँ और मैं पूरी तरह से तुझको आज़ाद करना चाहता हूँ, इस दर्द से नहीं मैं तुझको लेकर जाऊँगा। वो तितली शायद हमको उत्तर देगी कि नहीं, मुझे इस दर्द से गुजरने दे, क्योंकि यही प्रक्रिया के द्वारा मैं उड़ना सीख पाती हूँ, इसी के द्वारा मैं आगे बढ़ना। और हम शायद उसकी मदद करके उस प्रक्रिया को हम रोक देंगे है। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उस परीक्षाओं को रैंडमली नहीं आने देता है, एक मीनिंगलेस प्रक्रिया से हमको गुजरना लेकर नहीं जाता है, पर जो हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारे उन्नति के लिए ज़रूरी है, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आवश्यक बात है, उस उद्देश्य को, उस कारण से परमेश्वर उन परिस्थितियों से हमको लेकर जाता है ताकि वो हमको आगे जाकर बलवंत कर सके। जैसे कि वो कैटरपिलर जो होता है वो कुकुन में से बाहर आने के दर्द को रेजिस्ट नहीं करता है कि मैं इस दर्द के बाहर मैं नहीं जा सकता, बिकॉज वो जानता है इसी दर्द से आगे जाकर वो बटरफ्लाई बनने वाला है। एंड दिस इज़ द गॉड्स प्लान फॉर अस। यही हमारे लिए परमेश्वर की योजना होती है। पिछले दिनों में मैं यूसुफ के जीवन को बड़े बारीकी से अभ्यास कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उसके जीवन से मुझे मिलता है कि परमेश्वर जब उसको, उस यूसुफ को उस परिस्थिति से लेकर गुजर रहा था, और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर एक दिव्य समय है उसका, एक दिव्य मात्रा उसके लिए उस परीक्षा की ठहराई है और एक दिव्य उद्देश्य परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए। और मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि मेरे स्वर्गीय पिता मुझको जानता है उस भट्टी में कब डालना है और कब उसमें से बाहर निकालना है। वो स्वर्गीय पिता जानता है उस भट्टी की मात्रा को कितना अधिक मुझे तपाना है और उसके बाद कितना अधिक उसको कम करना है। ये मेरा परमेश्वर है जो उन सारे उद्देश्य को जानता है। और मैं देख रहा था यूसुफ के जीवन के अंदर कि कैसे परमेश्वर एक सिद्ध परफेक्ट समय से उसको लेकर जाता है। हम देखते हैं कि बहुत अन्याय से होकर वो गुजरता है, लेकिन उन सारी बातों के अंदर, उस सारे ट्रायल्स के अंदर परमेश्वर एक बहुत ही निश्चित क्लॉक को, एक समय को निर्धारित उसके जीवन में करता है। उत्पत्ति 37:25 में लिखा गया है, 37:25, वहाँ उसी रास्ते से जब उसको गड्ढे में डाल दिया गया था, वहीं से वे व्यापारी जो है ऊँट लेकर जो है वहाँ से गुजरते हैं। और मैं देखता हूँ वहाँ पे कि कैसे परमेश्वर ने उस समय को निर्धारित किया था कि वो ऊँट वहाँ से जाएंगे और उस ऊँट के द्वारा ही वो इजिप्ट में, मिस्र में ले जाया जाएगा, और कोई वहाँ से पास नहीं होगा, उसको मिस्र में ले जाना था। परमेश्वर वहाँ पर यूसुफ के जीवन में एक सिद्ध समय को तय करता है। प्रभु का एक निर्धारित समय था,
उससे जब आगे जब हम बढ़ते 39 अध्याय के अंदर 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते उत्पत्ति में, पोतीफर के घर में ही उसको बेचा जाना था, वहां पर कहीं और किसी के घर में नहीं बेचा जाना था। और वहां पर और एक बार परमेश्वर की हम सामर्थ को देखते सही समय निर्धारित करने में, ताकि उसके अंदर वो सारे गुण वहां पर वो लीडरशिप या जो भी उसको वहां पर सीखना था वहां पर सीख सके। और उसके बाद भी हम देखते हैं 40 अध्याय में कि एक उसको वहां अक्यूज, जो फॉल्सली अक्यूज किया गया, एक सही प्रिजन में डाला जाना था जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित, कोई भी दूसरी प्रिजन में नहीं, लेकिन जहां वो पिलाने हार आने वाला था, जो पकाने हार आने वाला था, उसी के अंदर। और ये हमारे लिए कितना प्रोत्साहन का कारण मेरे लिए बन जाता है कि जो आगे उसको फारूक के सामने खड़ा कर सके। और इस बात से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन के अंदर, आज हमने सुना कि आकस्मिक नहीं आता है। हर फेलियर, हर परिस्थिति से, कठिनाइयों का सामना जब हम करते हैं, उन काली घाटियों से होकर हम वैली से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर ने वो समय निर्धारित हमारे लिए किया हुआ, एक सही समय निर्धारित किया गया है ताकि हम उससे गुजरे और परमेश्वर के। और अंत में और एक चीज़ कि परमेश्वर ने उस इंटेंसिटी को भी उसने अपने हाथ में रखा है। जैसे कि एक लोहार जो होता है, उस धातु को शुद्ध करना चाहता है या सोने को शुद्ध करना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि उस प्लास्टिक को उस भट्टी में नहीं डाला जाता है जब उसको शुद्ध करने के लिए करना होता है। कोई भी प्लास्टिक को नहीं डालता क्योंकि हम जानते हैं उसकी क्षमता क्या है, वो वहाँ पर पूरी तरह से पिघल जाएगा। परमेश्वर जानता है कि वो हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है। वो लोहार से बढ़कर, सोनार से बढ़कर है कि ताकि और एक अधिक दिन भी नहीं हमको उस परिस्थिति से गुजारना देना चाहता है ताकि हम टूट जाए, और एक कम दिन भी नहीं गुजारना चाहता ताकि हम पूरी तरह से अधूरे उसमें से बाहर निकले। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन कि केयरफुली मेजर्ड प्रभु ने हमारे लिए उस परीक्षा को हमारे जीवन के अंदर रखा है ताकि हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता के अंदर हम और अधिक बनते जाए। तो यही मेरे लिए प्रोत्साहन था कि यूसुफ के जीवन से जो हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक परीक्षा के अंदर, हर घटना, हर दिन में एक समय को निर्धारित किया है। दूसरा, यूसुफ के जीवन में एक इंटेंसिटी को परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि कितनी मात्रा में हमको उस परिस्थिति से जाना है। और तीसरा, परमेश्वर ने एक निर्धारित उद्देश्य को, एक पर्पस को मेरे लिए, हम सभी के लिए रखा है। आइए इससे हम प्रोत्साहित हो कि प्रभु इन सारी बातों से लेकर जब हम गुजरता है, प्रभु जरूर हमारे लिए एक निकास का मार्ग लेगा और उसकी महिमा करेगा। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचनों के लिए। जो हमने सुना, काफ़ी चीज़ सीखने मिली, खासकर कि जोब के लाइफ से। जोब के लाइफ से मुझे एक चीज़ हमेशा अभी हाल ही के जीवन में मैं सीख रहा हूँ और उस पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं भी वैसे बन सकूँ। वो ये है कि जोब चैप्टर 31 वर्स 1, आई मेड अ कवनेंट विथ माई आईज नॉट टू लुक लस्टफुली एट अ यंग वुमन। सो God is really helping me and working in my life that God ने मुझे इस चीज़ से बचाया और छुड़ाया है, और मुझे भी ये प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। उसकी आत्मा मेरा सहायता कर रहा है कि मैं भी ये कवनेंट मेरी आंखों के साथ पूरा कर सकूं, कि मैं भी मेरी आंखों से मैं कवनेंट कर पा रहा हूँ कि मैं भी लस्टफुली किसी भी यंग वुमेन की ओर ना देखूं। और जैसे हमने अथॉरिटीज़ के बारे में सुना कि गॉड ने सब अथॉरिटी हमें दिया है, बट मुझे रोमन्स में चैप्टर 13 वहाँ पे लिखा है कि लेट एवरीवन बी सब्जेक्ट टू द गवर्निंग अथॉरिटीज, फॉर देयर इज नो अथॉरिटी एक्सपेक्ट दैट विच गॉड हैज़ एस्टैब्लिश, द अथॉरिटी दैट एग्जिस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। तो ये वर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप और अच्छा होने के लिए। गॉड मुझे बना रहे, मुझे हेल्प कर रहे हैं कि वो जो भी बोले मेरे पेरेंट्स, मैं उन्हें सुन सकूं। मेरा जीवन पहले ऐसे था कि मैं अब 27 साल का हो चुका हूं, मुझे आपका हर बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों सुनूं आपका, मैं अभी खुद का डिसीजंस ले सकता हूं। मैं उनको कहता था कि कुछ बातों में आप मुझे बताइए, मैं उसमें सुनूंगा, लेकिन सब चीज़ों में नहीं, मैं आपका सुनूंगा। लेकिन प्रभु मुझे बना रहा है कि मैं हर चीज़ में अब उनको और अथॉरिटी रिस्पेक्ट करने के लिए प्रभु बना रहे। वो जो भी कहें मैं वो सुन पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो कमी है। लेकिन पिता मेरे जीवन में उस चीज़ में काम कर रहे हैं। ऑफिस में भी कई बार ऐसे होता था कि बॉस को लेके या काम को लेके चिड़चिड़ करता, लेकिन प्रभु वहाँ पे भी बना रहा है कि जब कोई भी तरीके से मुझसे जब बात करता है तो प्रभु मुझे अनुग्रह दे रहा है कि मैं उसका सुन सकूं और वो जो अथॉरिटी है उसका रिस्पेक्ट कर सकूं। क्योंकि नीचे वर्स में लिखा है, हाँ, वर्स 2,
whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. So when जब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ झगड़ा या आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ तो मैं उनके साथ नहीं, मैं गॉड के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ. जब मेरे बॉस के साथ वो मुझे कुछ काम देता है या मुझे मेरे ऊपर कुछ काम आता है, जब मैं उसको सुनता नहीं हूँ, आर्ग्यूमेंट करता हूँ, तो मैं गॉड के साथ आर्ग्यूमेंट और ये कर रहा हूँ. सो एंड विच इज़ आई थिंक जो हम सबको, मुझे खास करके ये सब इस बड़ी गलती से बचने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. I am blessed with the message today. और आज के संदेश से मैं आशीषित हुआ हूँ. When we heard about James chapter 5 verse 11, और जब याकूब के अंदर हम पढ़ते हैं 5:11 में, it is mentioned about Job, अयूब के बारे में यहाँ लिखा गया है. but my eyes gone to verse 10. और वहाँ 10 वचन में मैं देखता हूँ उस वचन में, In my version it is written like this: और वहाँ पे इस प्रकार लिखा है. For examples of patience in suffering, look at the Lord's prophets. और वहाँ लिखा है कि जो दुख उठाने के संबंध में जो धीरज का जो उदाहरण है, आइए हम प्रभु के जो जन है, जो नबी जो है, उनकी ओर आइए हम देखें. The patience and suffering. और वहाँ पे धीरज और उस दुख उठाना. One of the brother when last week posted Isaiah 41:10. और 41 यशाया को किसी भाई ने पोस्ट किया था. Fear not, I am with you. और वहाँ पे लिखा है कि 41:10 के अंदर कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ. I was meditating that whole chapter. और उस वचन पर मैं मनन कर रहा था. It was starting like this: और ये वचन का भाग जो इस प्रकार शुरुआत वहाँ पे होता है, Listen in silence before me. और हे दीपो मेरे सामने चुप रहकर तुम सुनो. And so many things are saying, who has stirred up this one from the east, whom victory needs to at every step. और वहाँ पे लिखा है कि कौन राजाओं को अधिकारी ठहराता है तलवार से धूल के समान. बहुत सारी चीजें दूसरे वचन से आगे लिखी है. I just want to read verse 4. और वहाँ 4 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ. It is I, the Lord, the first and the last, I alone am He. और वहाँ लिखा है 4 वचन के अंदर कि मैं यहोवा हूँ जो सबसे पहला और अंत के समय में रहूंगा, मैं वही हूँ. He have allowed those sufferings in our situation to endure that. और परमेश्वर ने उन परिस्थिति को अनुमति दी है ताकि हम उसको धीरज से सहे. How much patient we are. कितना हम धीरज को धरते हैं. All glory to God. और प्रभु को सारा महिमा मिले.